Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I hope all you're fine and safe. This is chapter number 12, Communication and Collaboration Models. Okay, so this is the chapter where we will discuss that how we can communicate each other. What are different channels we can use for communication and what are different ways for communication. Okay, so here I have chosen some broad categories for communications, and if we are in a system and we are fail to follow a proper communication, so it means that the system will be fail. Another word here I have included that ignoring this lead to the failure of system. Okay, so I have included some broad categories for communication. Face-to-face communication we can use for communication, text-based communications, video-based communication, audio-based communication, and group working. So face-to-face communication is one of the most important and popular and basic communication way, and this is also very easy to deliver a message from sender to receiver. Here we will take the example of a class. So in a class, teacher and students. So this is the example of face-to-face communications. So student can ask questions and teacher can uh, give answer. Okay, so this is easy way as compared to other way. If we follow this way, mean text-based communication, so a student ask any question based on text. Okay, so it will be very difficult for the teacher and student, both of them, for the teacher, that how the teacher will deliver a message properly, and for the student that how student will understand what does it mean from a text-based message that's sent by the teacher. Okay, so this is also a difficult way, and as I told you that this is one of the most important and understandable way. Okay, third one is a video. We can create a video about any problem or lecture or anything. Okay, so mean we can communicate with someone, but this is not on the spot way of questioning and answering. Okay, the fourth one is audio. We can record our message in an MP3 form, audio form, without text and video, and we can deliver from source to the destination. We can solve problem using audio message or communication way. This is the fourth way. The fifth one is totally different from these, and this is a group working. Okay, so here I will discuss this in Urdu. यहाँ पे ये जो है हमारे पास फिफ्थ वन, ये ग्रुप वर्किंग है। और अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, जिस जगह पर भी हम काम कर रहे हो और हमारे एक टीम हो, और वो टीम ऊपर ये जो कुछ वेज है, ठीक है, फेस टू फेस या टीम व्यूअर है या और जूम या गूगल मीट जो भी है, और ग्रुप हम वर्किंग करें उसके ज़रिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, कि यहाँ से हम जो चैनल चूज़ करेंगे, तो ग्रुप में सब जो लोग होते हैं वो सबको अंडरस्टैंड होना चाहिए, उस पर कमांड होना चाहिए जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ लार्ज कॉन्टेक्स्ट है कम्युनिकेशन चैनल के। हम इसको फर्दर वन बाय वन एक्सप्लेन और डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन एक सिंपल वे है और एक पॉपुलर और एक इजी वे है कि हम अपने मैसेज को डिलीवर करें, एक प्रॉब्लम की सलूशन फाइंड करें। अगर एक स्टूडेंट को एक क्लास में जो भी डिफ़िकल्टी है, तो एक टीचर आसानी से वो देख के उसको सॉल्व कर सकता है। सेकंड जो वे है वो टेक्स्ट है, उसमें ना ऑडियो होता है ना उसमें वीडियो होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक टेक्स्ट फॉर्म में
हम रिप्लाई हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे डिफ़िकल्ट वे है अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। वीडियो जो है वो फेस टू फेस के बाद दूसरे नंबर पे इजी है और मतलब वैल्यूएबल है अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। ऑडियो जो है अगर हमारे पास वीडियो एक बेड क्वालिटी वीडियो भी हो तो वो ऑडियो से और टेक्स्ट से बहुत बेहतर है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, ठीक है। हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वन था फेस टू फेस कम्युनिकेशन, सो एज आई टोल्ड यू मोस्ट basic and most popular form of what of communication. So as I told you earlier in the previous slide that face-to-face communication is one of the most important and basic way of what of communications. So normally we are using this way face-to-face communication in our class between student and teacher. अगर कोई मीटिंग वगैरह भी होता है तो उसमें भी हम क्या करते हैं कैंपस में फेस टू फेस कम्युनिकेशन वो रखते हैं, ये वे फॉलो करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आम है और बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। ऑफन सीन एज द पैराडाइम फॉर कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन। अगर कोई कंप्यूटर यूज़ करता है तो इसके लिए भी ये एक पैराडाइम है। जिस तरह हम लोगों ने पैराडाइम पढ़े थे कि पैराडाइम हमारे पास है तो ये अ वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। हम सोच सकते हैं उसमें किसके बारे में, या तो एक प्रॉब्लम होगा, एक इशू, एक डिफ़िकल्टी, एक्सप्लेनेशन होगा, जो भी होगा, जो भी मतलब लॉजिक बनाना हो तो पैराडाइम क्या है कि उसके बारे में सोचो कि ये किस तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ये उस सलूशन और आपके दरमियान क्या है, एक इंटरमीडिएट लेवल पे क्या है, एक वे है कि आप क्या करें, उसको सलूशन प्रोवाइड करें, ठीक है। फिर हम लोगों ने 4 पैराडाइम प्रोग्रामिंग पे पढ़े थे कि एक हमारे पास लॉजिक है, एक इम्पेरेटिव है, एक फंक्शनल है और एक ऊप है। ये 4 प्रोग्रामिंग पैराडाइम हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। कि अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना हो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करना हो कोडिंग में, तो 4 पैराडाइम में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर और ह्यूमन के दरमियान ये जो फेस टू फेस है ये एक पैराडाइम है जिसके ज़रिए ह्यूमन और जो कंप्यूटर है उसका इंटरेक्शन होता है, ठीक है, फेस टू फेस के ज़रिए। यहाँ पे अगर जो विजन सिस्टम है कंप्यूटर का है या ह्यूमन का है, विजन सिस्टम मतलब ह्यूमन के आईज़ में कुछ मसला है, वो नहीं देख सकता कंप्यूटर को, या कंप्यूटर का स्क्रीन ख़राब है वो नज़र नहीं आता यूज़र को, यूज़र के आईज़ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि उसमें होने चाहिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, ठीक है। अदरवाइज द ह्यूमन और द सिस्टम विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, ओके। सो इसके बाद हमारे पास ट्रांसफ़र इफ़ेक्ट, एक चैनल हम यूज़ करते हैं, जो भी चैनल है, तो उसमें आप जो आंसर को मतलब ट्रांसफ़र करते हो, डिलीवर करते हो, ठीक है। एक प्रॉब्लम का आप सलूशन पेश करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, तो जो भी आपका ट्रांसफ़र क्या है, मैसेज है, प्रोडक्ट है, कम्युनिकेशन, जो भी कोड वर्ड है, जो भी है, तो उसका यहाँ पे रोल क्या है। सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और हम उसके ज़रिए वॉइस को या मैसेज को या ऑडियो को क्या करें, वीडियो को सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट और फास्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैंने इस वजह से यूज़ किया कि हमारे पास जो ये पोस्ट डॉक्स होती है उसके ज़रिए कोई लेटर में भेजना चाहूँ किसी जगह पे तो उसमें बहुत टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप मैसेज टाइप करो और डिलीवर कर दो, आधे मिनट के अंदर अंदर वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। वाइल जो इलेक्ट्रॉनिक के अलावा मीडिया है तो वो बहुत टाइम लगता है, उसमें 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, मतलब ये लग सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वी चूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर व्हाट, फॉर
our communication are for a message that we want to deliver from source to destination. So these are the factor of electronic media. Yes, this is very fast. Okay, simplex. From the simplex here, the discussion and the communications will be a one way communication. simplex क्या है? ये वन वे है, सिर्फ उसमें या डेटा सेंड होगा या रिसीव होगा। ठीक है, हम लोगों ने ग्राफ, अगर आप लोगों को पता है या पढ़ा हो तो ग्राफ में एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। तो डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन होता है और वो बताता है कि इस लाइन पे, इस लिंक पे ये जो नोड है या राउटर्स है, यहाँ से डेटा जाएगा इस तरफ, इसका ये डायरेक्शन है। अगर उस साइड से कोई डायरेक्शन नहीं है तो सिर्फ ये एक साइड पे डेटा सेंड करेगा, ये एक जो वे है। ठीक है, तो ये सिंप्लेक्स है। एट द सेम टाइम मीन ये परमानेंटली सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा। डुप्लेक्स क्या है? वो टू वे कम्युनिकेशन है और उसमें हम डुप्लेक्स हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन further it divided into two category. Okay, so the first category is half duplex and second is full duplex. A half duplex is a communication channel जहाँ पे हम डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, but at the same time it will send data or it will receive data. ठीक है, तो या ये सेंड करेगा या रिसीव करेगा। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ में ये कर सकता है। जो दूसरी कैटेगरी है फुल डुप्लेक्स, तो वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पाथ है, एक वे है, एक मीडिया है जो कि सेम टाइम पे डेटा को सेंड भी कर सकता है और उसी टाइम रिसीव भी कर सकता है। ये फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, सही। ये पूरा कन्वर्ट का हम लोगों ने डिस्कशन की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? चले, सही है, हम लोगों ने बताया कि ये फास्ट है। दूसरा है कि ये वन वे भी कम्युनिकेशन इसमें है, इसमें टू वे भी है, सेम टाइम टू वे भी है, और वो जिस सेम टाइम पे दोनों मैसेज सेंड एंड रिसीव ना करे वो भी एक कैटेगरी है डुप्लेक्स की। तो अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर एक सर्कमस्टांसेस कंडीशन हमारे पास ऐसा हो कि जिसमें डिज़ास्टर या बारिश या नेटवर्क ब्रेकडाउन हो जाए, कुछ हो जाए, जो भी इशू हम फेस करें, और उस वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास जो मीडिया है, जो कम्युनिकेशन चैनल है, जो नेटवर्क है, वो फेल हो जाए, तो देन वी विल नॉट बी एबल टू सेंड एनी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, जो भी है। ये जो फॉर्म्स है इसमें हम एलिजिबल नहीं होंगे फिर कि हम मैसेज डिलीवर करें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। ठीक है, दूसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेटेड है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब कुछ है, नेट सब कुछ है, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का इशू है, तो फिर भी यू आर नॉट एबल टू यूज टू डिलीवर, टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड, टीचर, जो भी आपके सामने है उसके साथ नहीं कर सकते। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, कंस्ट्रेन है कि इस सिचुएशन में ये जो चैनल है ये फेल होता है, यहाँ पे ये वर्केबल नहीं है, ये कंस्ट्रेन है। ठीक है, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हर चैनल के हर उसके होते हैं। आई कांटेक्ट जो है, अगर आपका टीचर है, ठीक है, वो टीचिंग कर रहा है, तो आप आई कांटेक्ट के ज़रिए भी उसको क्या कर सकते हैं, ये डिलीवर कर सकते हैं कि मैं मतलब आपका लेक्चर इंटरेस्टिंग वे से, या मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ और वो मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, और हम इस्टेब्लिश करते हैं क्या, सोशल प्रेजेंस, कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। आई कांटेक्ट ये बहुत ज़रूरी है क्लास में। आप आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो मतलब जो भी आपके सामने होगा वो ये कहेगा कि आप प्रॉपरली उसका जो मैसेज है, उसका जो कम्युनिकेशन है, आप नहीं करना चाहते या आप इंटरेस्ट नहीं हो। ठीक है,
So the first bullet here I have included that eye contact through which we can tell our teacher or anyone in front of us that yes, we are interested in your lecture, in your communication that you want to do with us or you are doing with us, and we also show our presence in that event or in that class or in that condition. ओके वहाँ पे हम प्रेजेंस आंख के जरिए मतलब इस जेस्चर के जरिए हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम आई कांटेक्ट यूज़ करें और हमारे सामने वीडियो लेक्चर हो, ठीक है, तो डायरेक्ट वीडियो लेक्चर अगर उसमें लाइट वगैरह ये सारे जो एलिमेंट्स है ये ज़्यादा हो, करीब हम बैठे और लाइट भी बहुत ज़्यादा हो तो ये हमारे आंखों को डैमेज कर सकता है, ठीक है। ये दूसरा आई कांटेक्ट का एक मतलब डिसएडवांटेज है इस सोर्स का, इस कम्युनिकेशन चैनल का। थर्ड जो बुलेट है यहाँ पे इंक्लूडेड है कि अगर हमारे पास वीडियो जो है वो बेड क्वालिटी का वीडियो भी हो, उसका क्वालिटी बेड हो, एचडी ना हो, स्टिल दिस इज बेटर देन ऑडियो। ओके, ऑडियो में कुछ मतलब हमें विजिबल नहीं होता, वो क्या होता है, एक सिर्फ ऑडियो मैसेज होता है, वेव फॉर्म में एक मैसेज होता है, जबकि वीडियो में हमें इमेज और ऑडियो दोनों गिवन होता है। तो हम हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है या किसी का भी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो प्रॉब्लम है वो वीडियो में हम उसको अंडरस्टैंड करें, आंसर दे, वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू ऑडियो, ठीक है। ये 3 बुलेट यहाँ पे एक्सप्लेन हुए हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ जेस्चर्स है, ठीक है, मतलब हाथ के ज़रिए ये इशारा करना, ठीक है, या बॉडी लैंग्वेज शोल्डर के ज़रिए करना, इस तरह के बहुत से और भी जेस्चर्स है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये आंसर या रिप्लाई या फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। सो मच ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज़ थ्रू आवर बॉडी। क्लास में है, टीचर टीचिंग कर रहा है, तो आप देखें कि वो कितना मतलब हेड यूज़ करता है जेस्चर के लिए, सॉरी, हाथ भी यूज़ करता है वो जेस्चर एज अ जेस्चर, ठीक है। क्या करें, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरीका है कि आप क्या करें, प्रेजेंटेशन करेंगे, सिर्फ ये नहीं कि आप हाथ बांधे और एक जगह पे खड़े हो जाए और आप क्या करें, अपना मैसेज डिलीवर करें। नो, दिस इज़ नॉट अ गुड वे। द गुड वे इज़ दैट वी मस्ट यूज़ our body parts forward for as a gesture for better understanding। ओके, ये कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन के ये अहम मतलब पार्ट्स है, ठीक है, ये काउंट होती है, इसके मार्क्स काउंट होती है, ठीक है। अच्छा, जेस्चर हमारे पास जो आई गेज है, आई के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने कहा कि हम इंटरेस्ट शो करते हैं, हम अपना सोशल प्रेजेंस शो करते हैं और हम अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं कि या वी अंडरस्टैंड 100%, 90, 50, 40 जो भी लेवल है वो भी हम फीडबैक में दे सकते हैं, ठीक है। तो जेस्चर मतलब इशारे करना वो है। मीडिया चैनल अफेक्ट्स। अब मीडिया चैनल्स हमारे पास है, वीडियो, ऑडियो, हाफ डुप्लेक्स और टेक्स्ट, ये फुल डुप्लेक्स, ये चैनल्स है। इसके इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। अगर हम एक मीडिया यूज़ करें तो व्हाट वी आर लूजिंग इन दिस communication channel. So for example, I want to use text based communication channel, so here I ignored video, images, audio and everything. Why? Because I choose that I will use text based communication channel. तो मैंने सब कुछ यहाँ पे क्या किया, इग्नोर किया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे। फर्स्ट देखे, ठीक है, वीडियो, अगर हमारे कम्युनिकेशन चैनल वीडियो हो तो वीडियो में हम लोगों ने क्या इग्नोर किया, लॉसेस यहाँ पे क्या है, बॉडी लैंग्वेजेस है, जेस्चर्स है, ये हम लोगों ने क्या किए, ये हम लोगों ने यहाँ पे मतलब इग्नोर किए, लॉस किए, ठीक है, नुकसान किया। वीडियो कम्युनिकेशन में हमने
बॉडी लैंग्वेज का नुकसान के यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। द सेकेंड वन इज़ ऑडियो वेयर वी लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। जो हम वीडियो में फेशियल मतलब फेस के ज़रिए जो एक्सप्रेशन देते हैं, जो मतलब फीडबैक देते हैं, तो यहाँ पे वो भी फेल हुआ। वी ओनली यूजिंग हेयर इन ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल MP3 बेस और वेव बेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज और फेशियल जो फेस जो जेस्चर जो फीडबैक था, जो इंटरेस्ट शो करना था, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए, इग्नोर किए। थर्ड हमारे पास क्या है, हाफ डुप्लेक्स है। प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किए कि हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। तो हाफ डुप्लेक्स वो है जहाँ पे हम जो बैक मतलब हम एक वॉइस कहे, किसी से आंसर पूछे, और फॉर एग्जांपल आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप किसी से कोई क्वेश्चन या एड्रेस पूछे कि ये कहाँ पे है, और यहाँ पे वो आंसर देना चाहे और सिस्टम क्या हो, फेल हो जाए, तो यहाँ पे कह रहे इसका मतलब ये कि लॉस्ट मोस्ट वॉइस बैक चैनल, ठीक है, रिस्पॉन्सेज। अब आपने वो रिस्पॉन्स रिसीव नहीं किया जो कि एड्रेस आपको चाहिए था, और आपके उस फ्रेंड ने या जो भी आपके साथ था फ़ोन पे, वो आपने क्या किया, आपने इग्नोर किया। तो यहाँ पे इसका भी ये बहुत बड़ा नुकसान है हाफ डुप्लेक्स का। ये भी फुल होना चाहिए ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। इस पे डिटेल से हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन की। अब टेक्स्ट बेस्ड जो कम्युनिकेशन है, तो टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन में हम लोगों ने ये सारे जो पैरामीटर थे, जो अंडरस्टैंडिंग बेनिफिशियल पॉइंट्स थे, ये सारे लॉस किए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज भी इग्नोर हुआ, और ये फेशियल एक्सप्रेशन ये भी इग्नोर हुआ, जेस्चर इग्नोर हुआ, वॉइस इग्नोर हुआ, ये सारे इग्नोर हुए। तो यहाँ पे क्या रहता है, कुछ भी नहीं रहता। अब टेक्स्ट बेस के बहुत से डीमेरिट्स है, डिसएडवांटेज है। एक बंदा मैसेज लिख रहा है और उसको मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी है उस मैसेज का, तो ना तो मुझे वो नज़र आता है, ना मुझे आवाज़ आती है उसकी, ठीक है। जो भी बंदा है, तो मैं किस तरह ये सोचूंगा, मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये जो मैसेज इसने टाइप किया ये हड़ी में है, मतलब ये जल्दी में है, या ये खुशी में है, या गम में है, या जो भी वो है सिचुएशन है, मैं गेस नहीं कर सकता। Why? Because this is just a text-based communication way, and no one can understand that, yeah, this person is in this situation. Why? This is very difficult, okay? So we cannot predict properly. हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेटली नहीं कर सकते, ठीक है, सही। अब यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो मोस्ट कॉमन मीडिया फॉर एसिंक्रोनाइज ग्रुप एक्सेप्शन, ये एक एसिंक्रोनस ग्रुप है जहाँ पे क्लॉक वगैरह ये चीज़ें नहीं होती, और यहाँ पे वॉइस जो ईमेल होता है, फ़ोन आप यूज़ करते हो, वो क्वेश्चन आंसर होता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। एक्सेप्शंस बग़ैर इन चीज़ों के, वॉइस भी नहीं है और फ़ोन वगैरह मेल वगैरह ये कुछ भी इस पे नहीं है, ये सिर्फ जस्ट अ टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन वे है, ठीक है। फेमिलियर मीडियम सिमिलर टू पेपर लेटर बट इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, सही। ये जो है ये बिल्कुल सेम है जिस तरह हम लेटर पे एक पेज पे ख़त लिखते थे और बेचते थे, उसका आंसर आता था, सेम वही तरीका है, अभी भी हम लिख रहे हैं। लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द यूनिक डिफरेंस हियर इन 21st सेंचुरी, सो दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए, जबकि इससे पहले जो था वो सारा पेपर लेटर बुक्स ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हैं, वो फास्ट है, वो डुप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए। कोई अगर ऐसा सरकमस्टांसिस कंडीशन हालात हो जिसमें बारिश हो या नेटवर्क ब्रेक हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो ये सारे क्या है,
ये कंस्ट्रेन एनवायरनमेंट है किसके लिए, टेक्स्ट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, जहाँ पे ये क्या होगा, फेल होगा ये वाला सिस्टम। प्रॉब्लम विद टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन चैनल, तो नो फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पे क्या है, कोई हमारे पास जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज नहीं है। दिस इज अ वेरी बिग demerits or disadvantage of text based communication channel, वीक बैक चैनल। ठीक है, ये सबसे वीक बैक चैनल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मतलब किसी से कुछ पूछना चाहते हो या आप पूछते हो तो उसका रिप्लाई वो जो भी आता है उसमें टाइम लगता है। ठीक है, सो डिफ़िकल्ट टू कन्वे। अब हैप्पी है, सैड है, अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये सिचुएशन हम टेक्स्ट में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर यहाँ पे इसके लिए प्रेडिक्शन, एक्यूरेट प्रेडिक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसके लिए कुछ ऐसी नहीं है। कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स गिवन है कि इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्माइली के लिए ये सारे जो कंपोनेंट है तो ये हम क्या कर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहे थे टेक्स्ट में, तो कुछ हद तक उस पर ओवरकम किया जा सकता है कि ये जो कंपोनेंट है थोड़ा सा हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो जो सैड सिचुएशन होता है, हैप्पी सिचुएशन होता है, या अर्जेंट जो भी इम्पोर्टेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होते हैं, सो वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस कंपोनेंट, बट स्टिल दीज आर नॉट एक्यूरेट एंड नॉट जो कि सही प्रॉपरली वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करे, फिर भी वो नहीं है, लेकिन एक हद तक यहाँ पे ओवरकम मतलब किया जा सकता है। ठीक है, स्पीड ऑफ चैनल्स, हमने जो चैनल डिस्कस किए, ऑडियो चैनल, वीडियो चैनल, हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड जो था, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इसका स्पीड भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो जो ऑडियो था, वीडियो था, टेक्स्ट है, कौन सा इसमें सबसे फास्ट है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। सो हेयर आई हैव इंक्लूडेड 3 channel. The first one is face-to-face, telephone and email. Okay, so a face-to-face communication can reply, or we can get reply within a few seconds. आप क्वेश्चन करो या जो भी आप पूछते हो तो उसका रिप्लाई फ्यू सेकंड में। क्यों? अगर टीचर और स्टूडेंट है क्लास में, टीचर लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट किसी जगह पे कंफ्यूज है, वो अगर पूछेगा तो विद इन फ्यू सेकंड जैसे ही स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को ख़त्म करेगा तो क्या करेगा, टीचर उसका आंसर देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो ये एक फास्ट वे है किस चीज़ का, मतलब फीडबैक का, स्पीड का। दूसरा हमारे पास टेलीफोन है, हाफ अ मिनट, आधे मिनट में क्या है, मतलब आप पूछो। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और यहाँ पे जब रिप्लाई आता है तो कुछ उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें हाफ मिनट लग जाता है आपका आंसर, आपको मतलब आंसर रिसीव करने के लिए या क्वेश्चंस को पूछने के लिए आपका आधा मिनट यहाँ पे लग सकता है। जबकि हमारे पास ईमेल जो है बिल्कुल प्योर टेक्स्ट बेस्ड, उसमें 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या डेज भी लग सकते हैं। अपना ईमेल का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, कितने बाद हम उसको चेक कर सकते हैं। सो फेस टू फेस conversation communication is a highly interactive and the most important way. okay, लोअर पेस का मतलब है कि लेस फीडबैक, और लोअर पेस का मतलब ये भी है कि लेस इतना इंटरेक्टिव और इतना हाईली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। ठीक है, सो ये आज का लेक्चर था, आप खुद इसको देख ले, जहाँ पे भी आपको इशू होगा आप पूछ ले, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच।